A very good morning to all. It gives me a great pleasure today to invite Dr. Bharti Jain, who is with us. We had the great fortune to hear her yesterday when she introduced us to various types of patents, designs, copyrights, trademarks, with wonderful examples giving us a clarity कि ये patent क्या होता है. I am Dr. Prakriti Kaurani. I am the convener of the Institutional Innovation Council of the Mahatma Gandhi University of Medical Sciences and Technology, which basically functions to enhance patents and startups in our university. तो हमारा IIC बहुत रेगुलरली ये इवेंट्स कंडक्ट कराता है और हमारा मेन एम है कि आप बच्चों की तरफ से और फैकल्टी और एलुमनाई की तरफ से कुछ आइडियाज़ इस स्टेज पे पहुंच पाएँ कि हम उनको पेटेंट भी करा पाएँ और आगे वो स्टार्टअप में कन्वर्ट हों. And I am very happy and proud to say that we do have one or two ideas as of now that have reached the stage of patent and are now moving towards the stage of startup. So to get a more clarity on this understanding, today we have with us Dr. Bharti Jain, who is going to be speaking upon how to plan for startup, the legal and ethical issues. अगर आप हमारे इवेंट्स को पहले सुनेंगे तो आप समझेंगे कि ये बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप है कि एक बार आपने पेटेंट फाइल कर दिया और आपकी इनोवेशन अब प्रोटोटाइप तक या आपका आइडिया उस पॉइंट पे पहुंच चुका है, तो अब उसको स्टार्टअप की तरफ अगर लेके जाना है तो पहले ही हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हमें थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी. Dr. Bharti Jain is an advocate and registered patent agent with over 15 years of experience in the field of intellectual property rights. She is the founder of Swash Legal Consultants with the focus of facilitating inventors from the university and academia in protection and enforcement of IPRs, including patents, trademarks, copyrights, and industrial designs and allied matters. A veterinary doctor by technical qualifications, she has the practical experience in drafting the patent specifications, filing and prosecution of patent applications. She has an extensive experience in patent analytics, including freedom to operate, infringement analysis and due diligence. She's actively participated in several national and international conferences and seminars. She is an awardee of the prestigious Women Scientist Scholarship Scheme, Kiran IPR, from BST Government of India. She was recognized among the 100 success stories from the Women Scientist Scheme 2021 by TIFAC Gold. She is a member of the Asian Patent Attorney Association and Licensing Executive. Can you tell us more about what are the things that we should keep in mind from the legal and ethical point of view for starting a startup? All of you are students. How many of you are having a vision of starting your own venture? One, two, none of you has this kind of dream that I will have my own venture. कुछ नहीं करना, बिजनेस अपना बिजनेस, अपना काम करने की किसी में वो है कि मुझे एक एंटरप्रेन्योर की तरह करना है, अपना खुद का काम करना है. हो सकता है इस प्रेजेंटेशन के बाद आप ये सोचें इस प्रेजेंटेशन में समराइज किया गया है कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स का कि जब आप अपना काम करें, एक स्टार्टअप करें, जब आपके पास एक आइडिया आता है और आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कहाँ किन किन गवर्नमेंट स्कीम से आपको फाइनेंशियल बेनिफिट मिल सकता है, जैसे रिबेट्स, लोन्स, इंटरेस्ट फ्री लोन्स और रीइंबर्समेंट्स. बिकॉज जब आप एज ए स्टार्टअप अपना काम शुरू करते हो, यू आर ऑलवेज टाइट ऑन योर फंड्स. When you have an idea and you identify that idea, you work on that project and you build your product. Your main purpose is
to put that product in market. There can be two aspects to it. Either there is a demand and that's why you want to put that product in the market. Second strategy is you have a brilliant idea, you are able to create a demand for it, and that's why you put that product in market. After identifying your business idea, you conduct a research on that particular industry. आपके competitors कौन कौन हैं, उस product की demand कितनी है, उसका pricing क्या है, because big जो competitors हैं, players हैं, उनके पास bulk production है, उनके पास बहुत सारे ऐसे जो resources हैं, they can provide product at lower cost. लेकिन एज ए स्टार्टअप अगर आप उस प्रोडक्ट पे काम करते हैं तो आप ब्रेक इवन पॉइंट को कैसे एनालाइज करते हैं, क्या आप अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं विद दैट लोअर प्राइसिंग. फिर आप लीगल एस्पेक्ट्स देखते हैं कि ये लीगल एस्पेक्ट्स हैं इस इंडस्ट्री के. जैसे कई इंडस्ट्री होती है जहाँ लीगल एस्पेक्ट्स कम होते हैं, लेकिन फार्मा, फूड, इन इंडस्ट्री में लीगल एस्पेक्ट्स ज़्यादा होते हैं. यू अंडरस्टैंड द रिस्क ऑफ योर बिजनेस एंड मैप आउट योर फाइनेंसेस, बिकॉज बिना फाइनेंसेस के कोई बिजनेस नहीं हो सकता. आपके पास ब्रिलियंट आइडिया हो सकता है बट उसको पहले रिसर्च, स्केल अप, इंक्यूबेशन, स्केल अप और मार्केट तक लाते लाते बहुत साल लगते हैं, बहुत समय लगता है, बहुत पैसा लगता है और मैन पावर लगती है. सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, अपना लीगल स्ट्रक्चर मीन्स एज ए प्रोप्राइटरशिप फॉर्म आप करना चाहते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं या एलएलपी बनाना चाहते हैं. होता है क्या है, जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिमाग, हम बिजनेस में इतना फोकस्ड होते हैं कि उसका लीगल स्ट्रक्चर हम उसको साइडलाइन कर देते हैं. जैसे कि बिजनेस दो भाइयों ने अपना पार्टनरशिप में कर लिया, फ्रेंड्स ने कर लिया, लेकिन जो प्रोडक्ट जब कंपनी एक ऐसी स्टेज में आती है जिसको कहते हैं नाउ इट इज़ अ वायबल सस्टेनेबल बिजनेस, डिस्प्यूट्स यूजुअली अराइज एट दैट पॉइंट इन टाइम. और वहाँ पर क्योंकि आपने शुरू से कंडीशंस डिफाइन नहीं की थी, यू फेस अ प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर टू फ्रेंड्स, वन हैज़ अ गुड, आपने एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया, एक फ्रेंड के पास एक अच्छा, उसने एक मार्क कॉइन किया, उसके पास एक ट्रेडमार्क उसने करवाया और कहा कि हम ये ट्रेडमार्क के साथ काम शुरू कर सकते हैं. आपने प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया, 3, 4, 5 साल बाद आपका डिस्प्यूट हुआ. आपने ये सोचा ही नहीं कभी कि ये ट्रेडमार्क जिस दिन ये मेरा पार्टनर निकलेगा, क्योंकि ट्रेडमार्क सिर्फ एक मार्क नहीं है, जब प्रोडक्ट फ्लो करने लगता है मार्केट में तो उसके साथ एक गुडविल एसोसिएट हो जाती है. लोग उस प्रोडक्ट को आपके साथ कनेक्ट करते हैं और इसीलिए वो प्रोडक्ट खरीदते हैं. जब वो पर्सन एग्जिट करता है बिजनेस से, वो अपने साथ अपना ट्रेडमार्क भी लेके जाता है, क्योंकि कभी उसने वो ट्रेडमार्क कंपनी को सेल किया ही नहीं, असाइन किया ही नहीं. तो अपना लीगल स्ट्रक्चर जब आप डिफाइन कर लेते हैं, अगर वो इनकॉर्पोरेशन है, कंपनी है, तो उसको रजिस्टर करवाएं. 1 पर्सन कंपनी भी होती है और एक से ज़्यादा डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं. अगर वो पार्टनरशिप है, उसको रजिस्टर्ड पार्टनरशिप करवाएं या एलएलपी जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है वो करवाएं. तीनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है वो नेक्स्ट स्लाइड्स में आएगा. देन आप ये देखिए कि मुझे लोकल, स्टेट और सेंट्रल लेवल पे क्या क्या रजिस्ट्रेशंस लेने हैं. ये रजिस्ट्रेशंस डिफरेंट होते हैं विद इंडस्ट्री, विद प्लेस. फॉर एग्जांपल,
आपको FSSAI रजिस्ट्रेशन चाहिए फूड प्रोडक्ट्स के लिए, अब ड्रग अप्रूवल्स के लिए CDSCO, CIB रजिस्ट्रेशन फॉर इंसेक्टिसाइड्स और मेडिकल डिवाइसेस के लिए भी अलग से उसी प्रोप्राइटर पे, उसी पर्सन पे ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस। पार्टनरशिप में both of the partners are liable as business owners. Corporation is a separate legal entity. यहाँ पर किसी person as an individual उसकी legal liability नहीं है. It is the legal liability of that company. Company is also a legal entity. It is a person. Then limited liability partner company is hybrid structure where legal protection, there are certain liabilities limited to personal liability for debts of the partnership. So it is a hybrid mode between corporation and partnership. When you go for company registration, you put together a business plan, your vision statement, mission statement. 2 लाइन का आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो होता है ना विजन, मिशन, और ये लगता है 2 लाइन का है, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. इट डिफाइंस यू, व्हाट इज योर विजन बिहाइंड स्टार्टिंग दिस बिजनेस. फाइंड आउट अ गुड बिजनेस नेम एंड लोगो, और ऐसा होना चाहिए जो डिसेप्टिवली सिमिलर ना हो और डिस्क्रिप्टिव ना हो. डिस्क्रिप्टिव मीन्स वो डायरेक्टली आपके बिजनेस को, जैसे कि जैसे आ गया राजू चपाती वाला, चपाती पता चल रहा है ना, डिस्क्रिप्टिव है कि ही सेलिंग चपातीस, तो वो डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए. सिमिलरली अब आप क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल करना चाहते हो, आपकी कंपनीज में डायरेक्टर्स पर्सन्स कौन कौन होंगे, उनके बायोग्राफीज. देन यू प्रिपेयर आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, करंट मार्केट, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ हैं, किस किस जगह पे, किस किस लोकेशन, टेरिटरीज, कंट्रीज आप अपना डिफाइन कर सकते हो. उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है फाउंडर्स एग्रीमेंट. लोग फाउंडर एग्रीमेंट नहीं करते और एक डायरेक्टर जब निकलता है तो पूरी कंपनी का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है. तो बी इट एनीवन फ्रॉम योर फैमिली और फ्रेंड, जितने भी को फाउंडर्स हैं उनका सबके साथ एक ऑपरेटिंग एग्रीमेंट होना चाहिए. एंड एग्जिट प्लान, तो को फाउंडर एग्रीमेंट में भी एग्जिट क्लॉज होना चाहिए कि जब वो को फाउंडर एग्जिट करता है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और वो कैसे एग्जिट करेगा, उसके एग्जिट से कंपनी को क्या इम्पैक्ट, मिनिमम इम्पैक्ट आना चाहिए या आना ही नहीं चाहिए. इस तरह से अपने क्लॉजेस को डिफाइन करें. सिमिलरली एग्जिट प्लान फॉर योर कंपनी. यहाँ एग्जिट प्लान मीन्स आज आपने प्रोप्राइटरशिप बनाई, फिर आप पार्टनरशिप में आ गए, आपके पास एग्जिट प्लान होना चाहिए कि अगर हम इस पार्टनरशिप को कॉरपोरेशन यानी एक कंपनी में रजिस्टर करते हैं तो कैसे हमारी लायबिलिटीज़, ऑब्लिगेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन होंगी. ये एग्जिट प्लान आपको स्ट्रक्चर, डिफाइंड स्ट्रक्चर देता है. सिमिलरली आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गए, अब आप एक लिमिटेड कंपनी बनना चाहते हो, अगेन देयर इज अ नीड टू एग्जिट. तो ये आपको 5-10 ईयर्स का विजन देता है एग्जिट प्लान. आप अपने आफ्टर सर्टेन टाइम आप मार्केट में शेयर्स लाना चाहते हो या आप अपनी कंपनी को सेल करना चाहते हो, तो यू हैव टू मेक इट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस एंड देन you will be able to exit. You don't want to sell it in loss. तो exit plan actually most important, one of the most important clause होता है, प्लान होता है जिसको लोग बैक बर्नर पे रख देते हैं. It should be there in your founders agreement and there should be exit plan for company also. देन सर्टेन लीगल कंप्लाइंसेस होती है जो मैंडेटरी होती है, जैसे टैक्स रिलेटेड हो गई,
जैसे आपके रजिस्ट्रेशंस हो गए, इंश्योरेंसेज हो गई, लेबर लॉ कंप्लायंसेस हो गए, और आज के टाइम में डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी लॉज। कुछ इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस हो जाते हैं, जैसे जब लॉ चेंज हुआ तो कहाँ कहाँ आपको डॉक्यूमेंटेशन में चेंज करना है, आपने कंप्लायंसेस में चेंज करना है, या सपोज एक डायरेक्टर वो एग्जिट कर देता है, वो भी एक इवेंट हो गया कंपनी के लिए। तो आपका प्रोसीजर, आपके कंप्लायंसेस इतने वेल डिफाइंड होने चाहिए कि जब भी कुछ इस तरह का कंप्लायंस इशू होता है तो आप डायरेक्टली लोकेट कर सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ क्या चेंज करना है, और उससे कंपनी की फंक्शनैलिटी इम्पैक्ट नहीं होनी चाहिए। Then comes ethical compliances। जब आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, सर्विसेज सेल करते हो, यू हैव सर्टेन ड्यूटी टुवर्ड्स योर कस्टमर्स। आप वही सेल कर रहे हो जो आप क्लेम कर रहे हो। इफ़ यू आर क्लेमिंग आफ्टर सेल सर्विस, सेल होने के बाद आफ्टर सेल सर्विस के लिए कुछ रिक्वायरमेंट आती है, यू कैन नॉट डिनाई, यू शुड नॉट डिनाई। ड्यूटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़, उनके लिए गुड वर्किंग एनवायरनमेंट देना। ड्यूटी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, पहले ये एथिकल था, आजकल ये मैंडेटरी हो गया है कि आपकी एक्टिविटीज़ से अगर एनवायरनमेंट इम्पैक्ट हो रहा है तो आपको सर्टेन एक्शंस ऐसे लेने होंगे जिससे आप एनवायरनमेंट को रिस्टोर करते हो। ड्यूटी टुवर्ड्स कम्युनिटी मीन्स आप कुछ ऐसा अपना एडवर्टीजमेंट में, प्रमोशन में या विद इन ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसा ना करें जो किसी दूसरी कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं तो उनके इमोशंस को, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनके अगेंस्ट ना, उनको हर्ट ना करें। दैट इज़ अ ड्यूटी टुवर्ड्स कम्युनिटी टू मेंटेन हार्मनी। नो काउंटर फीट्स, सिर्फ किसी का जो एक प्रोडक्ट है आपने उसको कॉपी किया, रिवर्स इंजीनियर किया और मार्केट में लेके आ गए, you will be noticed and you will get a bad name, bad reputation. No deceptive or inappropriate marks, we have already discussed. Dealing with advertisement and marketing, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, but ethically what I think कि 100% नहीं, but some ethics should be there। आपका प्रमोशनल मटेरियल ल्यूक्रेटिव होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, बट इट शुड नॉट क्लेम विच यू आर, योर प्रोडक्ट इज नॉट प्रोवाइडिंग। फॉर एग्जाम्पल रेड बुल का एडवर्टीजमेंट, इतनी एनर्जी आ जाती है कि आप बैटरी चार्ज कर देते हो। दिस इज मिसलीडिंग। डीलिंग विद डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी, बिकॉज ई कॉमर्स है या जो भी आजकल ऑनलाइन वर्क होता है उसमें, फॉर एग्जांपल दीज सोशल मीडिया वेबसाइट्स, दिस डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी लॉज हैव बिकम वेरी सीरियस। यूरोप हैज़ GDPR, this US has data protection laws, even India is also working on this। एंड डीलिंग विद टॉर्चर्स लाइबिलिटी, अगर किसी को कुछ हार्म हुआ है तो यू हैव टू रेस्टोर इट। नाउ हाउ गवर्नमेंट इज हेल्पिंग न्यू बिजनेसेस, देयर आर टू स्कीम्स, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव एंड MSME, थ्रू MSME। स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन में यू रजिस्टर योरसेल्फ ऑन वेबसाइट। फर्स्ट यू रजिस्टर योरसेल्फ एंड देन यू लॉग इन, then you fill in certain information like name of your company, how many directors are there, what is the legal structure of your company, what is your address, who is the person authorized. So these are the information which you need to submit. After registering yourself as a startup, you will get a certificate, and after that go for DPIIT registration. There is a link for it after registering as a startup. जब आप DPIIT के लिए रजिस्ट्रेशन करते हो तो उससे क्या, उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन होती है। What is the problem startup is solving,
वो हाउ डज योर स्टार्टअप प्रपोज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द यूनिकनेस ऑफ योर सोल्यूशन एंड हाउ डज योर स्टार्टअप जनरेट रेवेन्यू। बहुत सारी दूसरी इन्फॉर्मेशन भी है, वो सब आप फिल करते हो और वहीं से आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेते हो। अब जब आप DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप हो गए, आपको एक DPIIT रिकॉग्निशन नंबर मिलेगा। जब आप DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप हो जाते हो, यू गेट सर्टेन बेनिफिट्स। जैसे IPR रजिस्ट्रेशन में एक तो आपको बेनिफिट मिलता है रिड्यूस्ड फ़ी का। पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने के लिए नॉर्मल फीस 8,000 बट फॉर अ स्टार्टअप इट इज़ 1,600। रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन के लिए 20,000 बट फॉर अ स्टार्टअप इट इज़ 4,000। देन आप फास्ट ट्रैकिंग कर सकते हो, अर्ली पब्लिकेशन, एक्सपीडाइटेड एग्जामिनेशन। स्टार्टअप्स आर एलिजिबल फॉर फास्ट ट्रैकिंग ऑफ IPR एप्लीकेशंस। जब आप वहाँ पर रजिस्टर्ड हो तो अगर आप वेबसाइट पे जाओगे आप देखोगे देयर आर एम्पल नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड असिस्टेंस ऑप्शंस। मेंटोर्स का है, इंक्यूबेटर्स का है, बहुत सारे स्टार्टअप जो आपको फैसिलिटेट करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। और वहाँ पर गवर्नमेंट का मार्केट प्लेस में भी आपकी जो लिस्टिंग हो जाती है। और कुछ टेंडर्स ऐसे होते हैं, गवर्नमेंट जब टेंडर फ्लोट करती है और आप रजिस्टर्ड स्टार्टअप हो तो यू गेट रिलैक्सेशन इन द कंडीशंस ऑफ द टेंडर। कुछ टेंडर्स तो स्टार्टअप के लिए होते हैं। देन आपको कुछ लॉज जो बहुत सीरियस लॉज हैं लाइक लेबर लॉज, एनवायरमेंटल लॉज, लेकिन एज ए स्टार्टअप आपका सेल्फ सर्टिफिकेशन इज़ इनफ। आप श्रम समाधान पे लॉगिन करते हैं और अपना डिक्लेरेशन दे देते हैं। इतना रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने स्टार्टअप को प्रोवाइड किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, आप उस पर सर्च कीजिएगा। उसके बाद आता है इनकम टैक्स एग्जेम्पशन। वो हर स्टार्टअप को नहीं मिलता, देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया और वहाँ इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन है जो अप्रूव करता है। कंडीशंस हैं कि यू आर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और LLP, यू आर इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 1 अप्रैल 2016 एंड यू आर रिकॉग्नाइज्ड बाय DPIIT। अगर आप ये कंडीशंस फिल करते हैं और बोर्ड आपको अप्रूव करता है तो आपको 3 इयर्स का टैक्स रिबेट, टैक्स हॉलीडे मिलता है। और वो 3 इयर्स कॉन्जिक्यूटिव 3 इयर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव 3 इयर्स। स्टार्टअप जो है आप 10 इयर्स तक रहते हैं स्टार्टअप, या आपकी एक सर्टेन जो है आई थिंक इट इज़ 100 करोड़, जब तक आप वो अचीव करते हैं। अगर वो उससे पहले अचीव कर लेते हैं तो यू आर नो मोर ए स्टार्टअप। तो एक तो फाइनेंस रिलेटेड और एक टाइम रिलेटेड उसका लिमिट है। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए, जैसे कि आपने 2022 में आपने रजिस्ट्रेशन कराया और तो आप 2022 से 2032 तक एलिजिबल है। लेकिन आप या तो टैक्स बेनिफिट लीजिए 2023, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 27, 28, 29, 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, अलग अलग से नहीं हो सकता। और ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। वहाँ आपके लिए वो डायरेक्शंस दिए हैं पूरे जो आते रहते हैं, जैसे कि आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको अपलोड करना है, अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और उसके बाद आपका इंडस्ट्री क्या है, सेक्टर ऑफ वर्क क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस, और इस कुछ एविडेंस आपको देने होते हैं, पिच डेक, वीडियो, वेबसाइट लिंक, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, फोटो आईडी, ये सब आप वहाँ पर, ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, पैन डिटेल्स, ये सब आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ये डिटेल देते हैं। सिमिलरली अदर वे टू गेट बेनिफिट, गवर्नमेंट बेनिफिट्स इज MSME रजिस्ट्रेशन। MSME रजिस्ट्रेशन के क्या बेनिफिट हैं? चीपर लोन रेट्स, टैक्स रिबेट्स, एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट टेंडर्स, easy access to loans, concession in IPR registration fee, reimbursement of IPR registration fee, higher priority in government licensing, and have an integration with various government portals. Cheaper loan rates, वो टाइम टू टाइम स्कीम्स जो आती हैं आपको देखते रहना होगा।
टैक्स रिबेट्स भी उसी का पार्ट है, एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट टेंडर्स क्योंकि वहाँ पर भी मार्केट प्लेस है। और आप अगर आपने MSME रजिस्ट्रेशन कर दिया तो यू गेट नोटिफिकेशंस। देन कंसेशन इन IPR रजिस्ट्रेशन फी, इसमें सिमिलर टू स्टार्टअप आपको 80% रिबेट है ऑफिशियल फी में, 8,000 नॉर्मल फी, बट आपका पैटेंट फाइलिंग में 1,600। ट्रेडमार्क के लिए नॉर्मल इज 9,000, लेकिन अगर आप MSME या स्टार्टअप है तो 4,500। सिमिलरली डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन नॉर्मल फी इज 4,000, बट फॉर स्टार्टअप MSME इट इज़ 1,000। अब रीइंबर्समेंट ऑफ IPR रजिस्ट्रेशन फी। फर्स्ट, MSME कौन है, MSME में कौन रजिस्टर कर सकता है? MSME में एक इंडिविजुअल भी रजिस्टर कर सकता है, MSME में कंपनी भी रजिस्टर कर सकती है, पार्टनरशिप फर्म भी कर सकती है। क्राइटेरिया क्या है आपका? प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट नॉट मोर देन 1 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर नॉट मोर देन 5 करोड़। फॉर अ स्मॉल कंपनी इट इज plant and machinery equipment not more than 10 crore and annual turnover not more than 50 crore. For medium enterprise, investment in plant and machinery equipment not more than 50 crore, annual turnover not more than 250 crore. अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप, हमारा इंस्टीट्यूट कहाँ है? अगर स्टार्टअप कोई कंपनी, इफ दे स्टार्ट अ कंपनी, वो वहाँ आएगा। आपका जो ये ऑर्गेनाइजेशन आएगा वो इंक्यूबेशन में आएगा, इंक्यूबेशन बेनिफिट्स में। वो इंक्यूबेशन बेनिफिट्स में आएगा और उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड से। उद्यम रजिस्ट्रेशन बहुत सिंपल है, स्टार्टअप से भी ज़्यादा सिंपल है। जिस किसी के पास एक पैन कार्ड, आधार कार्ड है, वो उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर सकता है। यस, क्या है? अपने आप को स्मॉल एंटिटी बताने के लिए कि वी आर ए स्मॉल एंटिटी। जब आप एज ए स्मॉल एंटिटी काम कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपको, क्योंकि स्मॉल एंटिटी है उसको, उसके साथ कुछ चैलेंजेस होते हैं, फाइनेंशियल भी होते हैं, मैन पावर रिलेटेड होते हैं, तो वो आपको इस तरह का एक प्लेटफॉर्म दिया गया है कि मिनिमम रिसोर्सेज में आपको कुछ तो रिबेट्स, बेनिफिट्स, लोन्स, इजी लोन्स, टैक्स बेनिफिट, गवर्नमेंट टेंडर में रिलैक्सेशन। कुछ गवर्नमेंट टेंडर होते ही स्मॉल एंटिटी के लिए हैं, MSME जिनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है। तो इस तरह के बेनिफिट्स हैं, गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट कर रही है टू ग्रो। कोई आइडिया आपको स्टार्टअप की तरफ जा रहे हैं तो आपको देखेंगे कि इसमें, हाँ, इवन एज एन इंडिविजुअल भी वो उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वो स्टार्टअप के लिए कंपनी चाहिए उनको, लेकिन उद्यम रजिस्ट्रेशन कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है। यस, स्टूडेंट्स का पैन कार्ड इतना 18 इयर्स के बाद तो सबका पैन कार्ड होता है। पैन कार्ड तो सब बनवाते हैं। आई थिंक डॉक्यूमेंटेशन तो सबका होना चाहिए। एक्चुअली आधार से आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन बेनिफिट्स के लिए आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा बाद में। रजिस्ट्रेशन के लिए इट इज़ नॉट मैंडेटरी, but I think it is mandatory or not, you have to go and check. Yes. वो आप ऑनलाइन जाके देखेंगे, इंस्ट्रक्शन पता चल जाएगा आपको कि वो सिर्फ अगर आधार कार्ड से हो रहा है या पैन कार्ड भी चाहिए। एंड देन ये पोर्टल दिया है उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए, जो एक ई सर्टिफिकेट इमीडिएटली जनरेट हो जाता है। आपको हाफ एन आवर भी नहीं लगेगा उद्यम रजिस्ट्रेशन में। पैन एंड GST लिंक्ड डिटेल्स जो भी आपकी हैं वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी। अगर आपके पास पैन एंड GST है तो वो ऑटोमेटिकली, आपको वो भी फिल नहीं करना, वो वहाँ से रेस्पेक्टिव साइट से वो जो ऑटोमेटिकली है वो वहाँ से ले।
अगर कोई प्रायर ITR अवेलेबल नहीं है तो प्लांट एंड मशीनरी एंड टर्नओवर अगर है तो वो वहीं से ले लेगा, नहीं तो आपको फिल करना होगा। एक एंटरप्राइज, एक पर्सन एक ही उद्यम रजिस्ट्रेशन ले सकता है। वो कई तरह की मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सब में हो सकता है, वो सबको स्पेसिफाई कर दे, लेकिन उद्यम सर्टिफिकेट उसका एक ही होगा। स्टार्टअप में देखिए, स्टार्टअप और MSME दो अलग चीजें हैं। स्टार्टअप में आपने स्टार्टअप रजिस्टर किया, उसमें भी स्टार्टअप करके आपने DPIIT रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट नहीं लिया तो आपको IPR का वो बेनिफिट नहीं मिलेगा जो कंसेशन मिलते हैं। तो आपको वो DPIIT सर्टिफिकेट भी जनरेट करना होगा। वो अलग है और ये अलग। ये बिल्कुल, दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। उसमें अलग तरह के बेनिफिट्स हैं, इसमें अलग तरह के बेनिफिट्स हैं। आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल IPR है तो या तो आप MSME के अंडर बेनिफिट लीजिए या स्टार्टअप के अंडर में बेनिफिट लीजिए। अब स्कीम्स क्या है कि बिजनेस इंक्यूबेशन स्कीम्स, recognition of eligible institutions as host institute to act as business incubator. This is for you. You can act as business incubator. Here there is a process for approval of ideas of incubatees submitted through host institute. For that you have to contact MSME department, DI of your area, of your jurisdiction. हमने अप्लाई किया था इसके अंदर उनका रिजेक्ट हुआ नहीं, आपके आसपास पहले ही काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन सेंटर एप्लीकेशन रिजेक्ट, ये उनके सर्टेन क्राइटेरिया है तो हमें भी मिलेगा नहीं। ऐसा नहीं है। इफ यू, अगर आपके पास अपना खुद के इतने काम हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आपको आप ट्राई करेंगे और अगर आप ये दिखाते हैं कि यू हैव सब्सटेंशियल इंक्यूबेटीज हु वांट्स टू इंक्यूबेट विद यू, अप्रूवल ऑफ आइडियाज, आपके पास अप्रूव्ड आइडियाज हैं, तो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे और उस वक्त क्या क्राइटेरिया है डिपार्टमेंट के, क्योंकि क्राइटेरिया चेंज भी होते रहते हैं। Then financial assistance, maximum of ₹15 lakhs per idea to host institute for developing and nurturing the ideas, and maximum of ₹1 crore for procurement and installation of relevant plant and machines, including hardware and software etc. in business incubator for R&D activities and common facilities for incubatees of BI. So this you can apply. You can discuss with your MSME, which is here in Jaipur itself. Yes. Yes. Then there are certain eligibility criteria for incubation that institutions such as technical colleges, universities, professional colleges, institutes, R&D institutes, MSME, DI, टेक्नोलॉजी सेंटर्स ये अप्लाई कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं थ्रू देयर रजिस्टर्ड होस्ट इंस्टीट्यूट्स। द एप्लीकेंट में अप्लाई एट द पोर्टल, ये पोर्टल है जो इनोवेटिव ये है इसके लिए इंक्यूबेशन के लिए, innovativemsme.gov.in। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन का लिंक डिफरेंट है, ये उद्यम रजिस्ट्रेशन का लिंक ये है HTTPS, ये अब देखिए सेकंड बुलेट में नीचे उद्यम registration.gov.in, और ये इनोवेशन के लिए आपका ये पोर्टल है innovativemsme.gov.in। फॉर दिस इंक्यूबेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे वो इस लिंक से करेंगे। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो आपको मिलेगी जिनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है, पेटेंट आपने फाइल किया तो अप टू ₹1 लाख, यूजुअली 80% जो आपके एक्सपेंसेस हुए हैं वो यहाँ रिम्बर्स हो जाते हैं।
इंटरनेशनल पैटेंट के लिए अप टू ₹5 लाख, डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अप टू ₹15,000, ट्रेडमार्क के लिए अप टू ₹10,000 एंड GI रजिस्ट्रेशन के लिए 2 लाख पर केस। इसमें कुछ लिमिट है क्या कि हमने कितने दिन पहले पेटेंट करवाया उसको भी एंडोर्स करा सकते? नहीं ऐसा नहीं है, लिमिट नहीं है आपको, लेकिन 80% तक मिलता है, दैट इज़ द लिमिट, एक्सपेंसेस का 80%। एक साल पहले पेटेंट हुआ है उसके लिए भी हम अभी आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि आप अवेयर नहीं थे इससे, अब आपका 1 साल पहले उद्यम रजिस्ट्रेशन अभी कराएं क्योंकि वो तो हमने पहले कराया था नहीं और वो बैक डेट दैट वी नीड टू चेक कि उद्यम रजिस्ट्रेशन बाद में कराया और पैटेंट पहले ग्रांट हुआ है। हमारा डिज़ाइन वाला पेटेंट वो एक चीज़ As udyam registration, that you can discuss with the MSME department. That's it. Any questions? हमने आपको बीच में ही रोक के इतने क्वेश्चंस पूछ लिए। स्टिल हाउस इज ओपन फॉर स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ डाउट है तो मैडम से आप पूछ सकते हैं। अगर स्टार्टअप से रिलेटेड, इनोवेशन से रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चंस है पूछने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच मैम, वी हैड दिस whatever doubts we had some very people who were interested. I think their doubts are also clear. So with this, I would like to thank you for enlightening us both in yesterday's session as well as today's session. And with this clarity, we hope to proceed forward with whatever ideas our students have submitted into the Institutional Innovation Council. I would like to now request Dr. Shweta Mangal ma'am, Dr. Shoaib, Dr. Bharti to please come and facilitate our speaker.